आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये कुछ सिचुएशंस है डेली लाइफ की, जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। ये डेली लाइफ के अंदर होने वाली प्रोसेसेस है, सिचुएशंस है। इन ऑल द अबव सिचुएशंस In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. जो nature था या फिर जो identity थी initial substances की, वो क्या हुई है? Initial substances की identity change हुई है. We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. अब physical and chemical changes, physical change कौन से change होते हैं? जहाँ पे no new substances formed, कोई भी नया substance form नहीं होता है. और केमिकल चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं? केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. अब यहाँ पे whenever a chemical change occurs, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. एक chemical reaction क्या होती है? अब अगर हम ये देखें, that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder, इस powder को हम कहते हैं magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air. यानी magnesium और oxygen जब react करते हैं, so they form a white powder that is known as magnesium oxide. ये एक और एक्टिविटी है. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. तो अगर हम क्या करें, कुछ जिंक ग्रेनुअल्स को ले, जिंक यानी Zn, और उसके अंदर हम जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4. अगर हम उसके अंदर H2SO4 के अंदर अगर हम जिंक ग्रेनुअल्स ऐड करें तो क्या होगा? रिएक्शन विल टेक प्लेस लाइक ZnSO4 प्लस H2. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा. हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड. और सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन सल्फेट से क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट. Zinc sulfate is formed. Now from the above activities we can say that any of the following observations help us to determine कि chemical reaction हुई है. तो क्या क्या points होते हैं? अगर state के अंदर change आ जाए तो chemical reaction होगी. अगर color के अंदर change आ जाए, या फिर कोई gas का evolution हो जाए, या फिर temperature के अंदर change आ जाए, तो ये कुछ factors है जिनसे हमें पता चलता है कि ये chemical reaction हुई है या फिर नहीं हुई है. As we observe that changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. बहुत सारी chemical reactions हैं जो कि हमारे चारों ओर होती हैं. अब हम देखते हैं chemical equations. When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, magnesium is burnt in oxygen, it gives magnesium, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. इसको हम shorter form में भी लिख सकते हैं. The simplest way, इसका simplest way क्या है कि we write it in a form of word equation. एक word, जैसे ये word equation है, word equation की form में हम इसको लिखें. The word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. The substances that undergo chemical change in the reaction, जिनके अंदर chemical change होगा, जैसे magnesium और oxygen, वो क्या होता है? Reactants.
द न्यू सब्सटेंस जो कि रिएक्ट कर रहा है, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट, एक रिएक्शन के दौरान, जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड। यहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे, इसके बीच में क्या होगी, एन एरो इज प्लेस्ड। एन एरो is placed. The reactants are written on the left hand side. जो reactants होंगे वो हमेशा लिखे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा लिखे जाएंगे राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन। इनके बीच में प्लस साइन प्रेजेंट होगा, और ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स होंगे वो RHS की तरफ लिखे जाएंगे विद द प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द, वो क्या दिखाता है, जो रिएक्शन होगी उसकी डायरेक्शन दिखाता है, एक वर्ड इक्वेशन के अंदर जो हमें एरो दिखती है। अब हम देखते हैं अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज, अगर हम केमिकल फॉर्मूले यूज करें वर्ड्स की जगह। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन को हमें डिनोट करना है तो हम उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे अगर जो रिएक्शन हम लिख रहे थे, जो केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे थे, मैग्नीशियम plus oxygen gives magnesium oxide। यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी ये थी एक वर्ड इक्वेशन जो कि केमिकल रिएक्शन को डिनोट करी थी, और ये थी ज्यादा लंबी, इसीलिए हमने इसकी जगह यूज की है इनके फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम एटम्स कंपेयर करें दोनों तरफ तो मैग्नीशियम का यहाँ पे कितना एटम है, एक, यहाँ पे भी कितना ही है, एक एटम है। पर ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, तो यहाँ पे जो एटम्स है वो बैलेंस नहीं है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स सेम? सेम नहीं है। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर ऐसा होता है तो जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस्ड होती है, और अगर ऐसा नहीं होता है कि नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है तो जो इक्वेशन होती है वो अनबैलेंस्ड होती है, क्योंकि जो मास होता है वो सेम नहीं होता है दोनों तरफ। सच अ केमिकल इक्वेशन, ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या है, ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यानी ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सब हम देखते हैं। रिकॉल द, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास जो होगा एलिमेंट का दोनों तरफ प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स should be equal to mass of products. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation is the chemical equation. जैसे अगर हम ये वाली chemical equation देखें, zinc plus sulfuric acid gives a zinc sulfate plus hydrogen. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Zn यहाँ पे देखें एक एटम है, यहाँ पे भी क्या है, एक ही एटम है। H2SO4 में H2 के पास कितने एटम्स हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। सल्फर एक, यहाँ पे भी एक ही है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी एक ही है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में भी 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है, तो ये क्या है, ये है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एरो, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती है, यानी जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस होती है, उनको हम बैलेंस करना सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर।